Okay. Now today we will continue with the problems of kinetics. Read question number 7. Two bodies of weights 40 Newton and 25 Newton are connected to the two ends of a light inextensible string. Inextensible means it cannot be stretched. तो अभी यहां तक जितनी इंफॉर्मेशन मिली है इसको अगर आप डायग्राम में कन्वर्ट करोगे तो देयर आर टू masses 40 Newton 25 Newton. Let us consider them as blocks and they are connected with a light inextensible string. धागे से बंधी हुई है. आगे देखें और क्या दिया हुआ है. The string passes over a smooth pulley. So now there is a pulley also, but we don't know how the pulley is positioned. The weight 40 Newton is placed on a rough inclined plane, while the weight 25 Newton is hanging free in air. If the angle of the plane is 15 degrees and coefficient of friction between the weight and inclined surface is 0.2, find these things. So let us understand, see there is no figure given in the problem, only a physical description is given. One thing we know, 40 Newton and 25 Newton are connected with a string. So we connected it with a string. Then there is some pulley involved. So the pulley has to come somewhere, we don't know. But another thing is given that the 40 Newton weight is placed on an inclined plane. So we have to change the diagram now. Let us construct an inclined plane like this. The 40 Newton weight is sitting here. And since the 40 Newton and 25 Newton have to be connected by a string inevitably, so that means the pulley must be somewhere around here, like this. Because they are also saying that 25 Newton is hanging free in air. ठीक है? तो कुल मिलाकर के आपको लॉजिकल कंक्लूजन यही बनता है कि इसका फिगर कैसा होना चाहिए. It has to be something like this. This is 40 Newton. This is 25 Newton. This is your figure. कई बार आपको ऐसा काम करना पड़ता है कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो प्रॉब्लम में दी गई है उसको पढ़ के पहले फिगर बनाना ही काफी मुश्किल काम हो जाता है. So you have to understand, read the question carefully and then come up with the diagram. Once you have constructed the diagram successfully, then let us see what they want to do. Find the acceleration of the system. Now see, in such problems, there is always a dilemma about the direction in which the motion will start. भाई 40 न्यूटन को यहाँ पर आपने फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रेस्ट करा रखा है और 25 न्यूटन को लटका रखा है. अब देखो 40 न्यूटन की मोशन में तो रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन 25 न्यूटन की मोशन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सीधे नीचे को गिरने को तैयार है. ठीक है. सो हाउ डू वी प्रेडिक्ट कि ये 40 न्यूटन नीचे को फिसलती हुई 25 न्यूटन को ऊपर खींचेगी या 25 न्यूटन नीचे को चलते हुए 40 न्यूटन को ऊपर स्लाइड कराएगी. How do we know what is the case, which case is going to be? We never know. In many of the problems, we can never be sure about the direction in which the actual motion will take place. तो अब इस डिलेमा में मैं अपना एक्सेलरेशन को दिशा कौन सी दूंगा. आपको पहले ही पता है, पिछले प्रॉब्लम्स जो अपन ने सॉल्व की थी, we know that in order to properly apply the second law of motion, you have to determine the direction of acceleration first. ठीक है. तो अब ये एक बहुत टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम है और इसमें एक एसेंशियल लर्निंग है आज अपने लिए. सो इन ऑर्डर टू टैकल सच प्रॉब्लम्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू अप्लाई द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर्बिट्ररीली. मतलब आप मन में जो इच्छा है ना वो कर लो. आप अभी अपन फिलहाल एक काम करते हैं. लेट अस से दैट द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस लाइक दिस. यू आर नॉट श्योर, हमें पक्का नहीं पता कि इधर कोई चलेगी क्या बॉडी. मैं मान रहा हूं कि चलो ऐसा मान लेते हैं कि 40 न्यूटन नीचे को स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके स्लाइड होने से ये 25 न्यूटन ऊपर को चलेगा. सो इफ द एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन डेफिनेटली द एक्सेलरेशन ऑफ द 25 न्यूटन बार मस्ट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन.
और दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों को एक ही धागे से बांध रखा है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो जितना मीटर 40 न्यूटन इस स्लोप पे चलेगा उतना ही मीटर 25 न्यूटन ऊपर चढ़ेगा। So therefore, since the distance covered by both the blocks are definitely going to be the same because they are tied with a rope, so we can say that the value of acceleration will be definitely same for both the blocks. तो अभी अपन ने arbitrary direction आपने assume कर ली. We assume that this is going to be the direction of acceleration. And if this is wrong, then in your answer the value of acceleration will come out as negative, and then we will carry forward from that point onwards. पहले तो अपन को क्या करना है, अपन को फर्स्ट पार्ट है कि एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालो, यानी कि इस ए की वैल्यू निकालो। नो प्रॉब्लम। अपन को एक ही चीज करनी है काइनेटिक्स में, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है, all that you have to do is simply apply Newton's second law or D'Alembert's principle if separately asked. देखो जब तक D'Alembert's principle स्पेसिफिकली ना पूछा जाए आपको वो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें जबरदस्ती इनर्शिया फोर्स बनानी पड़ती है, फिर लेफ्ट में उसको ऐड करो, फिर वो दिखा करके फिर राइट साइड में ले जाओ, जबरदस्ती का एक स्टेप एक्स्ट्रा बनता है। तो जब तक प्रॉब्लम में कहीं भी D'Alembert's का मेंशन नहीं हो, you don't apply that and you directly go for Newton's second law which is easier to apply. तो चलो अब अपन इसके अंदर न्यूटन सेकेंड लॉ अपन दोनों ब्लॉक्स पे सेपरेटली लगा सकते हैं. So let us say that the value of tension is T, which is again unknown. I don't know what the value of tension in the string will be, but definitely if a string is given, tension will also has to be taken into consideration. अब मैं इस फिगर को देख करके पहले तो 40 न्यूटन ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, एंड द स्लोप, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री. So we know that the theta or slope is 15 degrees. Now see, whenever you get a slope and mass problem, इसमें मैं आपको एक लर्निंग सिखा देता हूं जो कि आप याद रखें तो बेहतर रहेगा. mg always acts downwards, and then there is a component of mg which is down the slope, and there is a component of mg which is perpendicular to the slope. तो इसके अंदर आप हर बार आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगा करके एंगल वैंगल पता करने की जरूरत नहीं है, एक चीज रट ही लो. द कंपोनेंट ऑफ mg in the direction of the slope will always be mg sin theta. रट लो ये. And the component of mg which is perpendicular to the slope is always going to be mg cos theta. इसको मैं यहाँ पे स्टार लगा के बोल रहा हूं, रिमेंबर. कभी भी कोई स्लोप आ जाए, डायरेक्शन ऑफ स्लोप में mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू स्लोप mg cos थीटा, रट लिया ये अपन ने. ठीक है. सो नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब इसके मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं 40 न्यूटन का कंपोनेंट्स, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं. सो आई हैव टू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द 40 न्यूटन ब्लॉक. ओके. सो I will draw the 40 Newton block like this. I will not even draw the slope. मैं इसका जो स्लोप जिस पे ये बैठा है वो भी नहीं बनाऊंगा. ठीक है. अब मैं इस पे क्या करूंगा, mg को मैं नीचे को बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, लेकिन मैं उसको बनाने की बजाय क्या करना चाहूंगा, मैं mg के कंपोनेंट बनाना चाहूंगा. So I will draw the component of mg and simply put it as mg sin theta, that is sin 15 degrees. Then there is a component of mg perpendicular to the slope. I will draw it like this and say that this is mg cos of 15 degrees. Then obviously the slope or the wedge is going to apply a normal reaction on the block. तो वो भी 40 न्यूटन पर एक्ट कर रही फोर्स है. So I will draw a normal reaction which is opposite to this mg cos 15. And the slope, अब देखो चूंकि अपन ने एक्सेलरेशन ऐसा माना है कि अब ब्लॉक ऑफ 40 न्यूटन इज गोइंग टू स्लाइड डाउनवर्ड्स, सो ऑब्वियसली द फ्रिक्शनल फोर्स विल ट्राई टू ओपोज द एक्सेलरेशन.
So the frictional force will be opposite and I will apply this as mu into r. ठीक है, अब मैंने इस पे सारी फोर्सेस बना दी है। क्या कोई मेरी फोर्स मिस हो रही है क्या? जरा देख के बताओ फिगर में। Am I missing out some force or have I drawn all the forces on the FBD? सर टेंशन फोर्स। यस, टेंशन मिस हो गई है। तो टेंशन की फोर्स भी अपन लगा देते हैं सिंस इट इज ट्राइंग टू पुल द 40 न्यूटन बैकवर्ड्स। अपने को टेंशन पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट द वैल्यू ऑफ टी इज। ठीक है, नाउ देयर आर टू डायरेक्शंस टू कंसीडर। वन डायरेक्शन इज दिस वन एंड अनदर डायरेक्शन इज दिस वन। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन देयर इज नो मोशन since the 40 Newton block is neither moving upward nor moving downward perpendicular to the plane, तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि R must be equal to mg cos 15। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो ये चीज तो मिली गई मेरे को। ठीक है, अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का बैलेंस रह गया। नीचे को एक्सेलरेट कर रही है, तो मैं 100% तरीके से ये कह सकता हूं, आई कैन बी कॉन्फिडेंट दैट कंसिडरिंग द मोशन इन दिस डायरेक्शन नाउ, इस डायरेक्शन की मोशन को कंसिडर करते हुए आई कैन से, एंड आई कैन डायरेक्टली अप्लाई न्यूटन्स लॉ, आई कैन से दैट mass into acceleration in the downward direction must be equal to mg sin 15 minus mu into r minus t। सही है क्या? ये देख करके बता दो, ये जो लिखा है मैंने लगा दिया न्यूटन्स लॉ, सही है क्या? यस सर सही है। बिल्कुल सही है। म्यू आर माइनस प्लस टी माइनस एम जी साइन 15 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है उसको देख करके प्लस माइनस मैंने डिसाइड किया है। तो एम जी साइन 15 तो हो गया प्लस, म्यू आर और टी दोनों हो गए माइनस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने प्री डिसाइड कर लिया था कि एक्सेलरेशन नीचे को है। हालांकि मुझे पक्का नहीं पता अभी एक्सेलरेशन नीचे को है कि नहीं है, आई डोंट नो। ठीक है, एनीवे आर की वैल्यू मुझे पता है, सो आई कैन सी। अच्छा, एम की वैल्यू क्या लिखूं मैं, ये बताओ। ब्लॉक का वेट है 40 न्यूटन, व्हाट इज एम? 40 अपॉन जी। 40 अपॉन जी। तो इसको मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखते हुए चलता हूं, 40 अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू, अब देखो एम जी तो 40 न्यूटन ही हो गया। ठीक है, 40 साइन 15 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 0.2। ठीक है, म्यू इज 0.2। आर कितना है अपन ने निकाल लिया था, आर इज एम जी कॉस 15 डिग्रीज। सो मल्टीप्लाइड बाय एम जी कितना है, वही 40 cos 15 माइनस टी। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से मेरे को एक्सेलरेशन तो मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? देखो 40 साइन 15 पता है, 0.2 इंटू 40 cos 15 पता है, 40 बाई जी पता है, लेकिन ये टेंशन जो है ये बीच में अननोन क्वांटिटी आ गई। सो आई कैनॉट डिटरमाइन माई एक्सेलरेशन विद दिस सिंगल इक्वेशन। नो प्रॉब्लम, आई विल save this equation as equation number 1 and then I will go to construct the free body diagram of the second body now। ठीक सर है, हाँ बोलो। सर एक और यूनिफॉर्म लेके नहीं ले सकते क्या अपन? कौन सा वाला? अभी जो आपने एक्सेलरेशन बताया इक्वेशन हाँ फर्स्ट में, हाँ, इस इसमें अपन एक को यूनिफॉर्म लेके सॉल्व करें तो? ए यूनिफॉर्म ही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है ए तो, और उसी यूनिफॉर्म लेके ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता ना। मैंने तो इस पे न्यूटन्स लॉ लगा दिया। आपको काइनेमेटिक्स की ए की सॉल्व वैल्यू पता करनी है, यही तो प्रॉब्लम है। ए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि ए कांस्टेंट है, वो तो है ही, ए इज कांस्टेंट, और ए कांस्टेंट है तभी अपन काइनेटिक्स का लॉ लगा रहे हैं आराम से। नहीं समझ में आया? आगे सर, मैं ऐसे कह रहा था कि ना इसमें काइनेमेटिक्स के 3 फॉर्मूले से निकाल सकते, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो फॉर्मूले के लिए वैल्यू भी नहीं अपने पास इसमें। वैल्यू ही नहीं है, आपको तो एक की वैल्यू ही निकालनी है, तो काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लगेंगे कैसे अभी? ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं दे रखी, तो काइनेमेटिक्स के कोई फॉर्मूला लगाने का
कोई तर्क ही नहीं बनता इसमें। आपको काइनेटिक्स का सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब अपन 25 न्यूटन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैं बनाता हूं, आप देख के बता देना सही है क्या। ये मैंने बॉक्स बनाया, दिस इज माई 25 न्यूटन ब्लॉक। पहली फोर्स तो ऊपर लग रही है, द टेंशन ऑफ द रोप इज ट्राइंग टू पुल इट अपवर्ड्स। नीचे को mg लगेगा विच इज डायरेक्टली 25 न्यूटन। और कोई फोर्स है क्या इस पे? एनी नो अदर सर। फोर्स ऑन नो 25 सर। न्यूटन ब्लॉक? बताओ। नो सर सर। रिएक्शन। और कोई फोर्स नहीं है, इसका किसी सरफेस से कांटेक्ट भी नहीं है, सो दैट इज इट। नाउ आई कैन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट द न्यूटन्स लॉ फॉर दिस। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऑब्वियसली जब आपने 40 न्यूटन ब्लॉक को नीचे को स्लाइड करते हुए माना है, तो ये 25 न्यूटन वाली ब्लॉक ऊपर को ही चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक दिस। अच्छा, इसको नीचे ले चलते हैं अपन। Tension is acting upwards, 25 Newton is acting downwards, and acceleration is supposed to be in the upward direction. तो अब इसको देखते हुए I can say that mass into acceleration must be equal to the sum of all forces in the vertical direction, because acceleration is in the vertical direction. And since acceleration is upwards, I will take t minus 25, not 25 minus t. ठीक है, t minus 25 ले लिया, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। What is mass in this case? Mass is 25 upon g into a is equal to t minus 25. This becomes my second equation. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 आपके हाथ में है, इक्वेशन नंबर 2 आपके हाथ में है। Those who are paying attention, please take up your calculators, your copies and pens, and quickly give me the value of acceleration. आपको इसमें से टेंशन को एलिमिनेट करना है। टेंशन पूछी है क्या? शायद पूछा है टेंशन। यस, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर दोनों आपको इसी से मिल जाएंगे, इन दो इक्वेशन से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करो और एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल के बताओ कितनी आ रही। अच्छा, इसमें टू बी प्रिसाइज यू हैव टू यूज g इज इक्वल टू 9.8। कई बार क्वेश्चंस में वो g की वैल्यू दे देते हैं, तो जो उन्होंने दिया है वही यूज करना है। जनरली अपन कितना यूज करते हैं? जनरली अपनी आदत है कि g इज इक्वल टू 9.81 लेते हैं अपन। लेकिन जब प्रॉब्लम में 9.8 दिया हो तो आप वही लें। ठीक है, डू इट क्विकली। ये आपके सामने इक्वेशन रही दोनों, सॉल्व इट। फाइंड a and t।
सबसे आसान तरीका ए निकालने का है, दोनों इक्वेशंस को सीधे ऐड कर दो, बिकॉज बाय एडिंग यू आर सीइंग दैट माइनस टी एंड प्लस टी विल कैंसिल आउट ऑन द राइट हैंड साइड। तो एक्सेलरेशन निकालने का सीधा जरिया तो ऐसे ही मिल जाएगा। दिस शुड नॉट टेक सो मच टाइम, आप लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो। If I add the equations, I would get 65 by g into a is equal to 40 sine 15 minus 0.2 into 40 cos 15 minus 25। बस इसको सॉल्व करना है, सबको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन मिल जाए उसको इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में किसी में भी डाल दो, टी मिल जाएगी। बट acceleration is equal to minus 3.37। यस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -3। अब देखो यहीं पे रुक जाना है अपने को, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसका एक ही मतलब है कि आपने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को अज्यूम किया था वो गलत है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट इन दिस डायरेक्शन, acceleration is actually upwards and the 25 न्यूटन ब्लॉक इज एक्चुअली मूविंग डाउनवर्ड्स। यानी कि ये 25 न्यूटन की ब्लॉक 40 न्यूटन को ऊपर को खींच रही है एक्चुअली। ये अपन को यहां से पता लग गया। अब देखो जनरली नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू विजिट एन एडिशनल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई क्रिएटेड फॉर यू हियर। यहाँ पे नोट्स में मैंने आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 4 देखो, फॉर इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम्स विथ फ्रिक्शन। ये देखो बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी आप यहां पर डील कर रहे हैं, और इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है। मेनी टाइम्स सच प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड। सबसे पहला स्टेप ये बोलता है फर्स्ट फाइंड ए। एक्सेलरेशन अपन ने पता कर ली। इफ ए कम्स आउट टू बी नेगेटिव, जो कि अपने साथ अभी हुआ, देन व्हाट यू हैव टू डू इज रीड्रॉ ऑल एफबीडीज एंड recalculate the value of a। the value of a will come out to be different। अलग ए की वैल्यू निकल के आएगी। जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपने पास कोई पुली की प्रॉब्लम है, ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक पुली है और ये बोला कि इट इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। यहां पर एक M1 है और यहां पर एक M2 है। अब आपको ये नहीं पता कि M2 M1 को ऊपर खींच रही है या M1 M2 को ऊपर खींच रहा है, तो आपने क्या किया, यू एज्यूम कि भाई हमें पता ही नहीं, तो दोनों को ऊपर मान लो। यस यू कैन डू दैट ऑल्सो। आप बोलो यार ये कैसा मतलब हो गया, दोनों की एक्सेलरेशन ऊपर कैसे हो सकती है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स में अगर आप डायरेक्शन को एज्यूम करते हो तो जनरली आपको फाइनली अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो आप उसका डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हो। सो इन दिस केस लेट अस से M1 was 10 kg and M2 was 20 kg। तो अब बताओ एक्चुअली ये कैसे चलेगी, M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा, यही होना है इसमें, सीधी सी बात है। तो जब आप इसकी मैकेनिक्स को सॉल्व करोगे यू विल गेट A1 as positive and A2 as negative। आपने एज्यूम तो दोनों को ऊपर किया था, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो A1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और A2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। एंड एज सुन एज यू गेट अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, all you have to do is simply say that the direction assumed for A2 was wrong and we correct it and put it in the downward direction, but the value of A2 remains the same। आप नेगेटिव को देख करके सिर्फ दिशा बदलते हो, उसकी वैल्यू नहीं बदलते। अब यही गलती यहां पर अपन प्रैक्टिस के चलते कर लेंगे। अगर अपन को ये इंफॉर्मेशन नहीं पता होता, अपन क्या बोलेंगे,
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन हमने यहाँ को मानी थी, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है ना, तो बस आंसर तो वही होगा। आंसर कितना आया आपका, 3 पॉइंट समथिंग आया। यू विल से कि ओके एक्सेलरेशन इज 3 पॉइंट समथिंग बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच वी प्रीवियसली कंसिडर्ड। यहां पर गलती हो गई, ठीक है। आपसे गलती यहां पर क्या हुई कि आपने फ्रिक्शन के रहते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। ये नहीं करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अवॉइड। यहां पर ये बोल रहा है generally in other cases we just assume that negative value of a means reversed direction only with no change in magnitude. However, in such cases as shown with friction, this is not true. ठीक है। अब देखो ये वाली प्रॉब्लम आपकी एक दूसरी तरीके से भी आ सकती थी। अगर मैं ये कह दूं कि यही सेम वेज वाली प्रॉब्लम है, M2 इज हैंगिंग डाउन एंड M1 इज स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर बट देर इज नो फ्रिक्शन। उस केस में अगर आपने एक्सेलरेशन निकाल ली तो उसमें माइनस साइन आ गई है, तो आप ये बोल देना कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो वही है, लेकिन इस माइनस साइन का मतलब यह है कि हम पहले एक्सेलरेशन नीचे को मान रहे थे, ये गलत है, और एक्सेलरेशन ऊपर को है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वही है जो हमने निकाला है। बट इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एवरीथिंग चेंजेस, द इक्वेशंस चेंज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर फ्रिक्शन वाली सरफेस के साथ में आपकी कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे फ्री बॉडी डायग्राम वापस से बनाने पड़ेंगे। फ्रिक्शन अगर यहां पे नहीं है तो आपको कोई फ्री बॉडी डायग्राम रिपीट नहीं करना है। जो वैल्यू एक्सेलरेशन की निकल गई उसको सिर्फ ये क्लेम कर लो कि हमारी बस दिशा गलत थी, इसको मैंने दिशा को सही कर लिया, दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड बाय मी रिमेन्स द सेम। ये तब कर सकते हो, बस आपने दिशा को उल्टा कर लिया माइनस साइन को देख के। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के प्रेजेंस में नेगेटिव आती है तो सारी एफबीडी वापस बनेगी और वापस से सारी कैलकुलेशन करोगे आप। सो नाउ इतनी सारी एक्सरसाइज अपन ने की, दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और उससे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। किस्मत खराब थी अपनी कि अपना आंसर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसकी एफबीडी दोबारा बनानी पड़ेगी। ये इस टाइप की प्रॉब्लम है ये, और इससे कोई बचाव नहीं है। अगर आप मेरे से पूछो कि सर ऐसा कोई ट्रिक बता दो जिससे कि मैं पहले से ही गेस कर सकूं कि करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, देयर इज नो आंसर टू दिस, यू हैव टू टेक अ रिस्क। अब अगर आपने तुक्के में अगर पहले से ही अगर एक्सेलरेशन 25 वाले की तरफ कर लिया होता तो आपका फर्स्ट शॉट में आंसर सही आ जाता। So this is the correct direction of acceleration. Now we know. तो अब मैं देखो पूरी पूरी की पूरी एक्सरसाइज वापस से रिपीट कर रहा हूं। I now know that the acceleration is in this direction. अब मैं टेंशन इधर को लूंगा, इसकी टेंशन इधर आएगी, और अब इसके जो फ्री बॉडी डायग्राम के इक्वेशंस कैसी बनेगी, देखो 40 न्यूटन का फ्री बॉडी डायग्राम अब वापस से बनेगा। तो कैसे बनेगा, now since the acceleration is upwards for 40 Newton block, the free body diagram is like this. Tension तो इसको वहीं खींच रही है। Down the plane, the component of mg is still the same, mg sine 15 degrees. But now what changes is the direction of friction. It is now in this direction. Mu into r is in this direction. पहले उल्टी डायरेक्शन में थी। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा था, ये देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, ऐसा था। नीचे को mg sin 15 थी, म्यू आर ऊपर को था, टेंशन की डायरेक्शन में था। लेकिन अब की बार जो नया फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है उसमें म्यू आर mg sin 15 की तरफ है, क्योंकि अब बॉडी ऊपर को चल रही है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वी विल स्टिल हैव mg cos 15 एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन वी विल हैव द नॉर्मल रिएक्शन। और वापस से इसमें नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos 15 आ गया। और उसके बाद अब न्यूटन्स लॉ जब लगाऊंगा तब क्या बनेगा, नाउ सी एक्सेलरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो
on application of Newton's law, I will get mass into acceleration is equal to t minus mg sin 15 minus mu into r. ये आएगा अब अपना, ठीक है। अब उसी तरीके से वापस से इसका भी बनेगा, 25 न्यूटन का भी इसी तरीके से बनेगा। 25 Newton is acting downwards, and since it is accelerating downwards now, so mass into acceleration for 25 Newton block will be 25 minus t this time. अब ये दो इक्वेशन वापस से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपन ने एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज समझी, जिससे कि आपका आंसर गलत हो सकता था। अगर प्लेन पे फ्रिक्शन नहीं है, ये ध्यान से सुनना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं इसको, प्लेन पे अगर फ्रिक्शन नहीं है इस टाइप की प्रॉब्लम में, और अगर आपकी कंसिडर्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाती है, तो आपको आंसर में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आप सिर्फ उसी एक्सेलरेशन को साइन चेंज करके बोल देना कि ओके, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट मींस the correct acceleration is in the opposite direction, that's all, but the value of acceleration is the same. But if the plane has friction, then the value of acceleration has to be recalculated. अभी जिन्होंने आंसर मेरे को बताया था एक्सेलरेशन का -0.3 समथिंग आई थी, अब ये नई इक्वेशन यूज करके, ये जो अपन अभी नई इक्वेशन बनाई है, इन नई इक्वेशंस को यूज करके वापस से आप अपनी एक्सेलरेशन निकालो, यू विल गेट दिस न्यू वैल्यू। इसका आंसर देखें अपन क्या है, यू शुड बी एबल टू गेट दिस वैल्यू एज द एक्सेलरेशन। 1.044 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर आना चाहिए आपका, और ये पॉजिटिव आएगी अब की बार। और एक बार एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव आ गई, फिर उससे टेंशन निकालना। अब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन थी उससे टेंशन निकालोगे तो वो टेंशन भी गलत ही आएगी। So you have to recalculate acceleration and recalculate the value of tension. ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट और पढ़ लो। Distance moved by weight 25 Newton in 3 seconds after starting from rest. इसमें क्या करोगे बताओ। देखो थर्ड पार्ट पे जब आप आ रहे हो, we are assuming that you have already solved for acceleration, you have already solved for tension. तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास में है। Now, how will you make use of the available information to calculate? हाँ बताओ। काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लगाएंगे। Yes. अब आपको पता है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी की अपन को जरूरत नहीं है, अपन से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें टाइम दे रखा है 3 सेकेंड, u तो 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, ut 0 हो गया। s निकालना है हाफ, a जो है अपन को पता है, ये री टाइम 3 सेकेंड, तो इसमें a की वैल्यू ये रखो 1.044, t की वैल्यू 3 सेकेंड रखो, तो आपको s कितना है ये पता लग जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। So this is a problem which involves both kinetics and kinematics, but this question is very, very important because you now know how to deal with negative accelerations in the presence of friction. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जैसा मैंने कहा आपको रिपीट नहीं करना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो यही है, बस इसको उल्टा कर लो, पहले हमने नीचे को लिया था अब एक्सेलरेशन ऊपर को ले लो। लेकिन अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो आपको पूरी फ्री बॉडी डायग्राम वापस से बनानी है, एक्सेलरेशन और टेंशन सब कुछ वापस से निकालने हैं, तो ही करेक्ट आंसर आएगा। उसको सीधे पलट लेने से आंसर गलत आएगा। अभी आपने 3 पॉइंट समथिंग निकाला था, यू रिकैलकुलेट, यू सी, सीधे सीधे एक्सेलरेशन की वैल्यू देख के पता लगता है देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, इसको करके देखना एक बार आप, वेदर यू गेट द राइट आंसर और नॉट। चलो अब अपन आगे चलते हैं। आज जितना अपने पास टाइम है, अब आगे वाली प्रॉब्लम पे मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन दे करके छोड़ूंगा, सॉल्व आप खुद करेंगे। वैसे पूरा सॉल्यूशन बंसल की किताब में है, प्रॉब्लम 11.7 है, इट इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल, बट यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, डोंट ट्राई टू जस्ट रीड द प्रॉब्लम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है,
अच्छा, वापस से अपन एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन्होंने क्या दिया है। टू बॉडीज डायरेक्टली इन लाइन and 10 meter apart are held stationary on an inclined plane having inclination of 20 degree। इसका क्या मतलब है, ये फर्स्ट लाइन जरा पढ़ के बताओ। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग बिना किसी हेल्प के सबसे पहले फिगर बनाना सीखें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या है सीन, क्या है यहाँ पे? सर इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर दो बॉडी है, तो दोनों 10 मीटर के डिस्टेंस पर है और वो एकदम स्टेशनरी है, और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 20 डिग्री है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। एक मिनट में जरा इसका अपना फोन का सेटिंग डू नॉट डिस्टर्ब पे कर लेता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग अप। डू नॉट डिस्टर्ब। See if it has affected the format. ठीक है। So what you have said is right. This is the situation. There is an inclined plane. The angle of the inclined plane is 20 degrees, and there are two objects. And these two objects are positioned at a distance of 10 meter away from each other. तो यानी कि ये जो distance है, इसके center से इसके center की जो distance है वो 10 मीटर, और ये दोनों अभी स्टेशनरी हैं। This is the scenario. Okay, let us take down the data. Coefficient of friction between the plane and lower body is 0.08। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। यहां पर तो आपकी म्यू कितनी है, 0.08 है। एंड बिटवीन द प्लेन एंड द अपर बॉडी इज 0.05। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.05। If both bodies are set in motion at the same instant, यानी कि उनको आपने सिर्फ छोड़ दिया है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और दोनों अपने अपने नीचे की तरफ को फिसलेंगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस थ्रू विच ईच बॉडी ट्रेवल्स बिफोर दे मीट टुगेदर। समझ में आया? अब देखो, ये बॉडी भी नीचे को चलेगी, ये बॉडी भी नीचे को चलेगी, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, तो दोनों की एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगी। लेकिन ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के ये थोड़ी दूर जाकर के कहीं ना कहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये यही पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस थ्रू विच ईच बॉडी ट्रेवल्स, यानी कि पहली बॉडी, लेट अस से दैट दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो यही बात बताई जा रही है कि फर्स्ट बॉडी टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगी और सेकंड बॉडी टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगी जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। लेट अस से दैट देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ s एट विच दे मीट ईच अदर। अब पता नहीं कहां पर है, मगर आगे कहीं ना कहीं जाकर के ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे। यहां पर दोनों नीचे को फिसल रही हैं, और आपको क्या निकालना है कि फर्स्ट बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेकर के यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और सेकंड बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेके यहां तक। ये आंसर है आपके, ये एस अकेला नहीं है आंसर आपका। कई बार अपन इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकालना क्या है। क्वेश्चन में ये साफ लिखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस थ्रू विच ईच बॉडी ट्रेवल्स। ये नहीं पूछा कि अपनी पोजीशन से कितने आगे जाके मिलेंगे, हर बॉडी की टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ये s निकाल लेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 हो जाएगा s+10 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 हो जाएगा s। सीधा सा लॉजिक है कि नहीं भाई? अपन ये मान रहे हैं कि 2 से एक s डिस्टेंस आगे एक ऐसी लोकेशन है जहां पर जाकर के ये दोनों मिलेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, if somebody asks you before meeting how much distance did body number 1 travel, it traveled s+10 meters, and how much distance did body number 2 travel, it traveled s distance। सही है कि नहीं है? समझ में आया क्या आपको?
यस सर। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना, वही करना है जो अब तक करते आ रहे थे। दो बॉडीज हैं, दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड। फर्स्ट बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, अब इसका देखो मास वगैरह इन्होंने दिया ही नहीं, पहली बात तो। बट डोंट पैनिक, अगर मास इन्होंने नहीं दिया है तो इसका मतलब है मास की जरूरत भी नहीं है इसमें। लेट अस सी हाउ वी कैन प्रोसीड। कंसिडर दैट द मास इज m1। ठीक है, जैसा मैंने कहा था पहले ही, m1 का डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या होगा, डाउन द प्लेन, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी m1g साइन 20 डिग्रीज। ठीक है, नीचे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, m1g cos 20 डिग्रीज। आई एम ड्रॉइंग द fbd नाउ। ऊपर को रिएक्शन लगेगा, r1 लिख लेते हैं, एंड ऑपोजिट upwards the plane we will get mu into r। इस पे मैंने mu1 mu2 भी लिख दिया ताकि पता लगे कौन सा म्यू कहां लगाना है, mu1 r1। ओके, दिस इज द एफबीडी। अब इस एफबीडी को देखते हुए मैं ये जानता हूं कि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं, सो दैट मींस r1 मस्ट बी इक्वल टू m1g cos 20 डिग्रीज। ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब रही बात इस डायरेक्शन के मोशन की, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किधर को हो रही है, नीचे को हो रही है कि ऊपर को हो रही है, नीचे को सर। एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, है ना, नीचे कोई फिसल रही है बॉडी तो अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ इस पे लगाऊंगा तो कैसे लगेगा, m1 इंटू ए। अच्छा, अब इसकी एक्सेलरेशन अलग है तो इसको मैं a1 लिख देता हूं, सेकंड बॉडी की एक्सेलरेशन को a2 लिखूंगा। ठीक है, m1 इंटू a1 इक्वल टू m1g साइन 20 डिग्रीज माइनस म्यू1 इंटू r1 आना चाहिए, लेकिन r1 की जगह मैं डायरेक्टली m1g cos 20 ले लेता हूं। ठीक है, सो म्यू1 इंटू m1 इंटू g cos 20 डिग्रीज। ये मेरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बन गई। ये सही है क्या, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? वही चीज, सेम चीज कर रहे हैं जो अपन पहले से करते आ रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो, इसमें कितने टर्म है, लेफ्ट साइड में एक टर्म है, राइट साइड में एक, दो टर्म है, और सारे टर्म्स में आपको m1 दिख रही है, तो m1 वैसे ही कैंसिल हो गया, अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी। So you get the value of your acceleration number 1 directly. It is g sine 20 minus mu1 into g cos 20. mu1 दिया हुआ है क्या? Yes, mu1 is 0.05, g is 9.81, sin 20 cos 20 आपके कैलकुलेटर से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं तो ये कह रहा हूं कि अब इसमें इक्वेशन 1 2 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को a1 की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। आई एम नॉट, वी डोंट हैव टाइम टू कैलकुलेट हियर, आप खुद कैलकुलेट करके चेक करेंगे। अब इसी तरीके से सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो इसका क्या आएगा, बिल्कुल वैसा ही डिट्टो बनेगा, बस m2 के टर्म्स में आएगा। नाउ दिस इज m2, नीचे को कौन सी कंपोनेंट लगेगी वेट की, m2g sin 20, इधर को लगेगा m2g cos 20, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन लगेगा R2, पीछे को फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन इसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट अलग है तो अपन इसको μ2 लेंगे, तो दिस इज μ2 इंटू R2। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगेन देयर इज नो मोशन इन दिस डायरेक्शन, देयरफॉर it is equilibrium in this direction, and since it is equilibrium, R2 must be equal to m2g cos 20 degrees। ये पता लग गया। Now taking this direction in which acceleration is downwards, so I can directly write m2 into a equal to m2g sin 20 minus mu2 into r2, और r2 की जगह पे मैं ये वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, so it is mu2 into m2g cos 20 degrees। Again m2 will cancel out throughout the equation and you get, sorry ये a2 है,
acceleration of second body. You will get A2 is equal to g sin 20 minus mu2 g cos 20. सारी वैल्यूज आपकी नोन है. You know the value of g, you know the value of mu2 which is equal to 0.08. ठीक है, सारी चीजें पता है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैंने ये कह दिया कि मुझे A2 भी पता है. अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे. कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे दोनों बॉडीज जब ये मिलेंगे. वापस से फिगर पे आ जाओ. अब आपको पता है दोनों की एक्सेलरेशन. बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, इसकी एक्सेलरेशन A1 है, पता लग गई. इसकी एक्सेलरेशन A2 है, पता लग गई. ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट, लेट अस से S मीटर्स डाउन फ्रॉम द लोकेशन ऑफ पॉइंट नंबर 2. तो सबसे पहले तो बॉडी नंबर 2 को कंसिडर करो. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 2 कितनी है? 0. फाइनल वेलोसिटी से अपन को मतलब ही नहीं है. आप तो ये देखो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सिंस दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट, एक सेकेंड सॉरी, दिस इज द फिगर. ठीक है, फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन और सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन दोनों अपन को पता है. अपन को पता है कि इस जगह पे आकर के कहीं मिलने वाले हैं, ये s डिस्टेंस निकालनी है. तो पहले बॉडी नंबर 2 का इक्वेशन बनाओ. अपन को एक्सेलरेशन पता है और ये भी पता है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0. अप्लाई दिस इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. a की जगह पे A2 लगाओगे. ठीक है, अच्छा अब ये टाइम पता है क्या आपको? टाइम भी नहीं पता. ठीक है, तो अब अपन इस पे एक काम करते हैं. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ A2 t स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें टाइम अपन को पता नहीं है तो इसलिए S नहीं निकल सकता. कोई बात नहीं, दूसरी इक्वेशन बनाओ. ये 10 मीटर्स है ये डिस्टेंस. अब A1 जो है, सॉरी जो फर्स्ट बॉडी है, ये इसी t टाइम में यहां से लेकर के इधर से पूरी चल के यहां तक पहुंची है. जितने t टाइम में सेकंड बॉडी यहां से यहां पहुंची, उतने ही t टाइम में फर्स्ट बॉडी यहां से यहां तक पहुंची है. ये चीज समझ में आई क्या आपको? क्योंकि यहीं पे आकर के दोनों मिले हैं. बॉडी 1 पीछे से चली है, बॉडी 2 आगे से चली है, 10 मीटर का इनमें फासला है. लेकिन जब ये यहां पर आकर के मिलते हैं तो इनको टाइम तो उतना ही लगा ना. बॉडी ए, फर्स्ट बॉडी को यहां से चालू होकर के यहां तक आने में जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम सेकंड बॉडी को यहां से यहां तक आने में लगा. ये मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर. है ना. तो अब अगर फर्स्ट बॉडी पे मैं अगर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की चीज लगाऊं, अगेन द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि ये भी रेस्ट से चालू हुआ फर्स्ट बॉडी. लेकिन फर्स्ट बॉडी की डिस्टेंस कवर्ड कितनी है? इट इज एक्चुअली s प्लस 10. ये 10 मीटर चला, फिर 10 के साथ s और चला. ठीक है, तो s प्लस 10 इज इक्वल टू ut तो हो गया 0 प्लस हाफ ऑफ A1 टाइम वही है t स्क्वायर. ठीक है, तो अब मैं एक काम कर सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इससे बनाऊंगा. आई एम गोइंग टू रीअरेंज दिस एंड से दैट t स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s प्लस 10 अपॉन A1. ये सही है क्या? फर्स्ट, ये जो सेकंड फर्स्ट बॉडी की इक्वेशन से मैंने ये बनाया. ठीक है, इससे मैं क्या बना सकता हूं? t स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ s डिवाइडेड बाय A2. अब चूंकि टाइम सेम है तो ये वाला t स्क्वायर और ये वाला t स्क्वायर दोनों सेम ही होने चाहिए. सो आई कैन से दैट ट्वाइस ऑफ s प्लस 10 बाय A1 मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s बाय A2. अब इसमें A1 और A2 आपको पता है, S आपको निकालना है. दिस इज हाउ यू डू इट. क्लियर हो गया कैसे किया है अपन ने? यस सर. तो देखो ये वाली प्रॉब्लम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी. इसमें भी वही सेम काम करना है. फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, न्यूटन्स लॉ लगा देना है.
सारे प्रॉब्लम में यही करना है और कुछ नहीं करना। और आगे पीछे की जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ काइनेमेटिक्स के टिडबिट से या थोड़ा सा लॉजिक लगा करके ऐसी चीजों से आ जाता है। तो वो तो आप क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंट्यूशन भी डेवलप होती जाएगी। लेकिन कोर जो कॉन्सेप्ट है आपके काइनेटिक्स का वो मैंने आपको कई बार बता दिया, 100 times I have repeated, again I am repeating. All you have to do is draw the correct free body diagram and take the direction of acceleration and construct the equation of motion by using either the second law of Newton or D'Alembert's principle. That's all. और अभी तक आपने सारे प्रॉब्लम्स में देख लिया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यही करते आ रहे हैं। और उसके आगे थोड़ी बहुत काइनेमेटिक्स लग जाती है कुछ चीजें निकालने के लिए और थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। So we will stop here. We have covered 2 more questions here, and in the next class we will tackle a little bit more difficult problems. ये लास्ट की जो प्रॉब्लम्स है 9th और 10th ये और भी ज्यादा टिपिकल है, इसमें और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लगेंगी। तो इनको अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक अपन एनर्जी वाले मॉड्यूल पे चलेंगे। वी विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट इन विच वी विल स्टडी अबाउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है, आज का लेक्चर जो है आपको क्लियर हुआ? वर द कॉन्सेप्ट्स क्लियर टू यू, एवरीथिंग? Yes, sir. Yes, sir. आई विल टेक योर अटेंडेंस, प्लीज डोंट गो अवे।